Hi everyone, it's Math with AUB. In case of quantitative mathematics preparation of IBA direct test, another elegant question based on successive reduction. Our question goes as, if the price of a dress is now 1800, if the price of a dress is now 1800 and it has undergone successive reduction of 20% and 10%, what was its original, what was its price originally? We have paid, or we have asked to pay 1800 after we have obtained two successive discounts, first of 20, second of 10, and we have been asked what should be the what is the mark price that must be written on the your on any article on the dress, sorry, on the dress that we have just bought for $1800. Okay, it is not the case simply 20 plus 10 30 means that is the 70% of our original price. That is not the case. How to find, how to find percentage down? 100%. First discount 20 minus 20, it is equal to 80. 80%, 80%. 80% of the price. After first discount, we have to pay 80%, and we have another discount of 10%. 10% must be calculated, must be accumulated on 80%. 10% of 80, 10% into 80 overall 100, cancelled out. I have 8. So after second discount, 80 minus 8, 72%. 72%. 72% of the mark price, of the written price, we have paid, and it is now after two successive discounts, yani ki 8 after 20%, after 20 10%, we have to pay 72% of the mark price. 72% of the mark price that we have paid is 1800. Now we are interested in original price that was written on the article, that had been written on the article. 72 to remove percent, divide by 100, it's 1800. Solve for mark price, easily shift 100 in multiplication, 72 in division. We have the mark price, our original price, 1800 times 100 divided by 72. 118 the 18, 418 the 72. 18, 18, 30, double of 36 is 72. 4 times 25 is 100. Now I have mark price is 100 times 25. 100 times 25, 25 hundred, $25, $2500, $2500. Actually the price written on the dress was 2500, 2500. After a discount of 20% and 10%, we have paid 18%. One can verify the fact, from the solutions as well, from the solution as well. Let's see and find out how. 25, suppose from options we have taken 2500, give a discount of 25, 20%, then 10%, what happens? Let's see. So 2500, first discount of 20%, let's see how much it is. 2500 multiplied by 20, to remove percent, divide by 100, cancelled out. What I have? 225, 50, 500. Means after first discount, instead of 2500, we have to pay 2000. We have to pay 2000. Second discount on 2000, that is 2000. Second discount is of 10%. 10%. 2000 multiplication, multiply with 100, multiply by 10, divide by 100, cancelled out. That is 200. 2000 after second discount minus 200, that is our 1800. We have paid, it is not the case simply at 20 plus 10. It is not the case. First give the discount on 100%. After a discount of 20%, we have arrived at 80%. On 80 we have to give second discount of 10%. After that 80 minus 8, 72, means we have paid 72% of the original price,
that is 1800, that is 1800. Then we have to solve for original price. So original price is going to be 1800 multiplied by 100 divided by 72. Applying table, 4 times 1 is there, 4 times 25 is 100, 100 into 25, that is our original price that was written on the dress was $2,500. $2,500. Okay, cool. Switching over our language. जी, हमने एक ड्रेस की प्राइस अब 1800 रुपए है, $1800, 1800 रुपए है, और इसमें इट हैज अंडरगॉन, हमने ली है, हमने दी है, दो डिस्काउंट दिए, सक्सेसिव डिस्काउंट, कमियां, रिडक्शन, डिस्काउंट, कमियां, रिडक्शन ऑफ 20% और 10%। तो हमसे ये पूछा गया है कि जो एक्चुअल रिटर्न थी, प्राइस लगी हुई थी जो ड्रेस पर, वो कितनी थी, वो कितनी थी, यानी कि आफ्टर डिस्काउंट्स टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स हम 1800 पे पहुंचे, दो रियायतों के बाद, दो डिस्काउंट के बाद हम पहुंचे 1800 रुपए पे, और वो डिस्काउंट कितने के, पहला 20% का है, दूसरा 10% का है, पहला 20% का है, दूसरा 10% का है। तो हमसे ये पूछा गया है कि शुरू में शुरुआती उसकी कीमत कितनी लिखी हुई थी आर्टिकल पर, ड्रेस पर, 1800, पहला डिस्काउंट मींस 100 में से 20 गया तो हमने 80% ओरिजिनल प्राइस का पे किया। अगर हमें 20% पहला डिस्काउंट मिला तो हमने जो ड्रेस पर कीमत लिखी हुई थी, ओरिजिनल प्राइस थी, उसका 80% पे कर रहा था, 80% पे कर रहा था। मगर हमें एक और डिस्काउंट मिला 10 पर, दूसरा डिस्काउंट हम 80 निकालेंगे, 80 पर निकालेंगे 10%, 80 पर निकालेंगे 10%। तो ये परसेंट हटाने के लिए मैंने 2 0 से डिवाइड किया, 100, दैट्स 8। सो 80 में से 8 मजीद डिस्काउंट मिला, पहले 100 में से 20 गया 80, फिर 80 पर मजीद 10% का डिस्काउंट मिला 72, यानी कि हमने 72% उसकी कीमत पे की, उसकी ओरिजिनल प्राइस पे की, जो कि 1800 है। अब के उसकी प्राइस 1800 है, लेकिन ये यहां पर पहुंची है दो डिस्काउंट देने के बाद, पहला 20 का, 100 माइनस 20 80, दूसरा डिस्काउंट हमने 10% का दिया 80 पे, जो कि 8 आया, 80 में से हमने 8 कम किया 72, यानी कि हमने एक्चुअल प्राइस का 72% दिया, परसेंटेज दिया, जो कि 1800 है। अब हम ओरिजिनल प्राइस के लिए हल करेंगे। प्राइस, जैसा कि हमें मालूम है, परसेंट हटाएंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, बराबर है 1800 के, 100 यहां डिवाइड में, वहां मल्टीप्लीकेशन में, और 72 से डिवाइड, तो हमारी ओरिजिनल प्राइस आ जाएगी 1800 टाइम्स 100 डिवाइडेड बाय 70। 18 का टेबल अगर आप लगाएंगे 72 पे 4 मरतबा जाएगा, 100 से, और 4 का टेबल 100 पे 25 बार जाएगा। सो 100 को हमने मल्टीप्लाई किया 25 से, ये आ गया हमारा 2500, राइट ऑप्शन हमारा 2500 है। और कोई स्टूडेंट जिसे अगर ये सॉल्व करना मुश्किल लगता है तो इसके लिए एक आसान मेथड, लेकिन वो आपसे टाइम ज्यादा लेगा, वो ये होगा कि आप ऑप्शन से वेरीफाई करें, और आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन नो डाउट आपसे टाइम लेंगे, और लेकिन हम 2500 से चेक कर लेंगे 25%। पहला हमने डिस्काउंट देना है 2500 पे 20% का, पहला डिस्काउंट 20% है, 20% डिवाइडेड बाय 100, ये 0 इसके साथ गया, 250 मल्टीप्लाई बाय 2, 500 का डिस्काउंट, यानी कि 2500 का 20% 500 बना, 2500 का 20% 500 बना, तो 2500 में से हमने 500 कम कर दी, फिर यानी कि हमने अगर हमें एक डिस्काउंट मिलता तो हमें 2000 पे कर रहे थे, 2000, बट अनदर डिस्काउंट ऑन 10%, जो कि हम 2000 पर कैलकुलेट करेंगे, 2000 पर अगला 10% हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, 2000, 10% का सिंबल हटाएंगे, हम 100 से डिवाइड करेंगे, ये 0 के साथ चलेगा, 20 बचा हमारे पास 200, तो 2000 में से 200 कम करेंगे, हम कहां पर पहुंचे, 1800 पे, जो कि हमारा राइट ऑप्शन। एक बात ध्यान में रखें, पहले आप 20 का दे, फिर 20, पहले 10% का डिस्काउंट दे, फिर 20 का, दिस मेक नो डिफरेंस, फर्स्ट डिस्काउंट 10% का, फिर 20% का, आपको प्राइस यही मिलेगी। आप अगर चाहे तो वेरीफाई भी कर सकते, देखिए पहले हम 10% का डिस्काउंट देते हैं, फिर हम 20% का डिस्काउंट देते, देखते, ये 2500 जनाब, 2500, पहला डिस्काउंट 10% का, 0 कैंसिल आउट, दैट इज 2500, दैट इज 250, दैट इज 250, हमारे पास कितना है 2500, 2500 में से हमने 250 कम किया, कितना है जनाब 2250। दूसरा हमें डिस्काउंट इसी पर देना है 20%,
ये 0 0 कैंसिल आउट। 225 को अगर हम दुगना करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 450। 450 2200 कितना है, 2250। 225 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये है 450। यानी कि हमारे पास 2250 में थे, हम 450 कम करेंगे। 450 कम करेंगे, 50 50 चला गया। 2200 में से मजीद 400 कम करें आप, तो आप वही 1800 पे आके पहुंचे। 1800 पे आके पहुंचे, यानी कि डिस्काउंट आप पहले 10 का दे, फिर 20 का दे, पहले 20 का दे, फिर 10 का दे। ऑर्डर डजंट मैटर, ऑर्डर डजंट मैटर। इट्स माय टाइनी एफर्ट, you explain to you guys successive discount question, it's all by itself। next